Hey guys, welcome to Derivatives. So, we are getting started with derivatives, and I have seen one thing and also felt the same as a student, okay, while I was preparing for CFA level 1. डेरिवेटिव्स में सबसे पहले होता यह है दैट सब पहले से थोड़ा डरा देते हैं। फिर पढ़ते हो तो उसका लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा यू नो it's a proper core finance language that is used in derivatives. Even if whenever you read Schwezer, you will understand that the language in derivatives थोड़ा ऐसा feel होगा कि थोड़ा go easy, right? uh, but it's not about the language, okay? And it is not even about the subject. It is just that थोड़ा exotic है derivatives in nature. When I say exotic, it is something that you guys have not seen in your life, okay? Or for a reason you guys do not know why are derivatives even used in the financial markets. What is the application of derivatives? क्यों, क्या, कैसे, कब, ये सब जो है ना, ये क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स में है. एंड दैट इज हाउ एवरीवन हैज दिस थिंग कि डेरिवेटिव्स यार टफ होगा, टफ होगा, टफ होगा, टफ होगा. बट ट्रस्ट मी, वो टफ नहीं है. नहीं है. It is not tough at all. Okay. It is just something new. Just how fixed income. Okay. I clearly know कि स्टूडेंट्स को इक्विटी जब पढ़ते हैं तब उनको एंजाइटी फील नहीं होती है, बट फिक्स्ड इनकम में होती है. उनको वो वाली एंजाइटी थोड़ी फील होती है. बट मेरा कहने का मतलब है मत होने दो. ओके, डोंट थिंक अबाउट दैट. फिक्स्ड इनकम में भी कुछ नहीं था. It is all logic based. It is just that when a new system enters your body, okay, your mind, it just takes some time. Okay, so give it some more time and it will easily be, you know cross your mind. It will easily sit well in your mind in terms of the concepts. Okay. So yeah, with all that gyan of motivation and this and that, let's get started with derivatives. And yes, precisely the first reading of derivatives, which is reading 68 here, which is called as derivative instrument and derivative market features, clearly and clearly talks about derivatives कि वो क्या है, क्यों है, कैसे है, उसका क्या एप्लीकेशन है, why are people going gaga about it, why do banks and financial institutions use derivatives, why do investors indulge into derivatives, what are the motives, what are the objectives that one is trying to solve for, correct? वो सबके आंसर यहाँ पे है. अब ये जो चैप्टर है, अगर आप अपनी यू नो आप श्वेजर में रीड करोगे या कहीं पे रीड करोगे तो आपको कहीं ना कहीं पे ऐसे फीलिंग आएगा कि ओ बहुत टेक्निकल हो रहा है. दैट इज वाई डेरिवेटिव्स में स्ट्रिक्टली आई से, ओके, स्ट्रिक्टली दैट पहले मेरे वीडियोस देखो एंड आई एम गोइंग टू गो स्लो. जस्ट नॉट फॉर द अगेन, आई डोंट वांट दैट थॉट इन योर माइंड. नॉट बिकॉज इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट जस्ट बिकॉज इट इज अ न्यू थिंग. तो आई विल गो स्लो, मैं धीरे धीरे जाऊंगा. गो विथ माई वीडियोज. मैं वीडियोस कराऊंगा, कर लूंगा, उसके बाद प्रॉपरली गो विथ श्वेज, है ना, प्रॉपरली. ओके, प्रॉपरली गो विथ इट. बट इसका प्रीफेसिंग इंपॉर्टेंट है. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रीडिंग गाइस. सो डेरिवेटिव मार्केट्स. Derivatives is a security that derives its value from the underlying security, which can be stocks, bonds, interest rates, currency rates, commodities, etc. देखो वापस लैंग्वेज तेड़ी. डेरिवेटिव इज अ सिक्योरिटी. ओके, डेरिवेटिव जैसे स्टॉक एक सिक्योरिटी है, जैसे बॉन्ड एक सिक्योरिटी है, राइट, ऐसे डेरिवेटिव भी एक सिक्योरिटी है. तो स्टॉक ऐसे समझो, पहले ध्यान से मेरी बात सुनना, एक के बाद एक मैं आपको फ्लो देता जाऊंगा. ठीक है. When you think about a stock, stock is a security. What is a stock backed by? मतलब ये स्टॉक, लेट से रिलायंस का मैंने स्टॉक है 3,000 का है फॉर एग्जांपल. सो व्हाट इज दिस रिलायंस का स्टॉक बैक्ड बाय? इट इज बैक्ड बाय द कंपनी कॉल्ड रिलायंस, करेक्ट, विच हैज बिजनेस, विच हैज बिजनेस वर्टिकल्स. ऑयल का है, रिटेल का है, ग्रीन एनर्जी का है, एंड स्टफ.
So a stock is backed by a story, okay, an equity story, equity, right? So stock is backed by an equity story of a company, okay, which is running a business and it is trying to create value, okay, which is running a business and it is trying to create value, okay. How? By generating revenue, by making profits, by employing a lot of people, by trying to expand and reach out and service the entire nation in some or the other form. The company is trying to do that, and that is why the stock has the highest value in the Indian stock market, clearly. Correct? तो ये बात हो गई रिलायंस की. ओके, तो रिलायंस, तो मैंने जैसे बताया स्टॉक है, स्टॉक इज बैक्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड एज रिलायंस. ऐसे ही डेरिवेटिव, कोई भी एक डेरिवेटिव जो होता है ना, इट इज बैक्ड बाय स्टॉक्स और बॉन्ड्स और इंटरेस्ट रेट्स और करेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा. समझ रहे हो? जैसे कि एक स्टॉक इज बैक्ड बाय द वैल्यू, मतलब आज अगर लेट्स से रिलायंस कंपनी बंद हो जाती है तो स्टॉक की क्या वैल्यू रहेगी? जीरो, खत्म हो जाएगा. सो बेसिकली कैन आई से दैट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज टाइड टू इट्स अंडरलाइंग कंपनी. करेक्ट? उसी तरीके से द वैल्यू ऑफ अ डेरिवेटिव इज टाइड टू इट्स अंडरलाइंग स्टॉक और बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट्स और करेंसी और दिस और दैट. समझ रहे हो? डेरिवेटिव एक सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट है. सो डेरिवेटिव की वैल्यू निकलती है फॉर अभी के लिए लेट्स जस्ट पार्क इट टू स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स. ठीक है? तो लेट्स से डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है वो स्टैंड अलोन कोई वैल्यू नहीं होती है, जीरो होता है वो. जैसे स्टॉक की स्टैंड अलोन कोई वैल्यू नहीं होती है. स्टॉक when associated with a company gets its value. ठीक है? तो स्टॉक एक जरिया है. ओके, इट्स लाइक अ कार. ओके, कार चलेगी ही नहीं जब तक कोई कार चलाने वाला नहीं होगा तब. राइट? सो डेरिवेटिव का जो वैल्यू है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग, एंड द अंडरलाइंग हियर कैन बी अ स्टॉक, कैन बी रिलायंस का स्टॉक, नॉट रिलायंस. ओके, समझ रहे हो? इसमें क्या था? पहले रिलायंस था, फिर स्टॉक था, उसके ऊपर डेरिवेटिव है. तो रिलायंस स्टॉक डेरिवेटिव. तो यहां पे रिलायंस का अंडरलाइंग, अरे रिलायंस के स्टॉक का अंडरलाइंग रिलायंस की कंपनी है. ठीक है? बट यहाँ के जो डेरिवेटिव का अंडरलाइंग है वो है रिलायंस का स्टॉक. Okay, so it goes like this. If I have to just give you a quick this thing, that एक है derivatives, okay, जिसकी वैल्यू आती है एक स्टॉक से, okay, और एक है स्टॉक जिसकी वैल्यू आती है कोई भी एबीसी कंपनी से, जो भी है. okay, तो इट इज हाउ इट इज, लाइक दैट इज हाउ इट वर्क्स. स्टॉक नहीं तो चलो बॉन्ड ले लो. बॉन्ड थोड़ी हवा में रहेगा, बॉन्ड भी अलग अलग चीजों का रहता है ना. एक बॉन्ड की, जैसे मैंने स्टॉक बताया, बॉन्ड की स्टैंड अलोन वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है. तो बॉन्ड लेट से कोई गवर्नमेंट का बॉन्ड है या फिर कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड है, लेट से रिलायंस का ही बॉन्ड है, समथिंग लाइक दैट. सो इवन दिस इज अ डेरिवेटिव का कॉम्बिनेशन, वेयर डेरिवेटिव का वैल्यू, ओके, जहां पे डेरिवेटिव का वैल्यू बॉन्ड से निकलता है बट बॉन्ड का वैल्यू यहां से निकलता है. सो व्हेन वी, अभी तक जब हम फिक्स्ड इनकम कर रहे थे तब हमें सिर्फ इससे मतलब था, इतने पार्ट से. ठीक है? जब जब भी हम इक्विटी कर रहे थे तब हमें सिर्फ इतने पार्ट से मतलब था. बट जैसे हम डेरिवेटिव्स में आ गए हैं, मैटर थोड़ा बदल गया है. ओके, अब हमें इतने से फर्क है तीनों से. ठीक है? नाउ वी आर कंसर्न विद द एंटायर स्पेक्ट्रम. So now you read this sentence, okay, and now you will understand. So derivative is a security that derives its value from the underlying security. Correct? उसका value underlying security से आता है. In this case, can be stocks, can be bonds, can be interest rates, can be currency rates, can be commodities, etc. etc. अब मैं कुछ चीज पे आपको कनेक्ट कर रहा हूं. अब आपने ऐसे सुना रहेगा ना कि कोई बोलता है कि मैंने कॉल बाय किया, मैंने पुट बाय किया, मैंने फ्यूचर लॉन्ग किया, मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया. राइट? मैंने गोल्ड के फ्यूचर्स लिए, मैंने सिल्वर का फ्यूचर्स को शॉर्ट किया है. ऐसी सब जो बातें सुनते हो ना, ये सब कुछ नहीं रहता है, ये सब होता है डेरिवेटिव्स. ठीक है? सो व्हेन समवन सेज दैट बाय आई बॉट अ रिलायंस का फ्यूचर, आई बॉट a Reliance का future at 3010, for example, it means that one has taken a derivative position. Okay, one has taken a derivative position which is backed by Reliance का stock.
So let's say if the Reliance का stock starts performing bad, let's say Reliance का stock 5% next day गिर जाता है, तो ये डेरिवेटिव भी गिरेगा. चढ़ जाता है 5%, so डेरिवेटिव भी चढ़ेगा. So the value of Reliance का futures, Reliance का derivative is tied to the performance of the Reliance का stock. समझ गए? Exactly, this is derivative. Here the underlying we are talking about is a stock of Reliance. It can be bond, it can be interest rates, it can be currency, it can be commodities, it can be everything. ठीक है? But I will go step by step. मैं step by step जाऊंगा तो आपको धीरे धीरे उस पे कैच करने को कुछ मिलेगा. ठीक है? तो यहां तक आप समझ गए. Now, as I said, okay, कि one thing अभी आपके दिमाग में अभी बहुत आता रहेगा कि चलो सर ये सब ठीक है, समझ गया, आपने जो बोला वो आइडिया आ रहा है, बट व्हाई आर डेरिवेटिव्स यूज्ड? ओके, जरूरत क्या है डेरिवेटिव्स यूज करने की? तो देखो, कभी कभी क्या होता है ना, ये स्टॉक्स और बॉन्ड्स जो रहते हैं, ओके, उसको आप आपके कैश कैश जो आपके पास पड़ा रहता है आप उससे बाय कर सकते हो और उसमें ट्रेड कर सकते हो. ठीक है, पर स्टॉक्स और बॉन्ड्स है ना, थोड़ा इजी है. लेट से मैं आपको बताता हूं दैट लेट से यू वांट टू बाय 5 kgs ऑफ गोल्ड, 10 kgs ऑफ गोल्ड. इट इज नॉट रियली इजी टू डू दैट. इतना सारा गोल्ड खरीदो, उसको स्टोर करो, स्टोरेज का कॉस्ट बेयर करो. कैसे करोगे? क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल लेट से आपको क्रूड ऑयल लेना है 5 टन. कहाँ रखोगे? क्या करोगे? व्हाट विल हैपन? सो डेरिवेटिव्स आपको ये बोलता है कि भाई देखो, तुमको गोल्ड लेने में ही इंटरेस्ट है ना, यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग गोल्ड, फेयर, बी इंटरेस्टेड इन बाइंग गोल्ड. इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड बाइंग फिजिकल गोल्ड, बाय अ गोल्ड का फ्यूचर. बाय अ गोल्ड का फ्यूचर. अब आप बोलोगे फ्यूचर क्या है सर? ये सब धीरे धीरे हम आएंगे. ओके, वी विल बिल्ड ऑन दिस. तो स्लोली स्लोली वी विल बिल्ड ऑन दिस. कोई कोई जगह पे अगर ऐसा लगता है ये नहीं पता है, डोंट वरी, वी विल बी कवरिंग इट. ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी देयर. सो लेट्स से मैंने आपको गोल्ड की बात बताई, मैंने आपको क्रूड ऑयल की बात बताई. ऐसे ऐसे सिचुएशंस में होता ये है दैट समटाइम्स प्लेइंग प्लेइंग थोड़ा पैसिव इज ग्रेट. ओके, कि भाई मुझे, मैं थोड़ी ये 10-10 किलो, 15-15 किलो, 20-20 किलो गोल्ड कहाँ रखूंगा, क्या करूंगा, सेफ्टी कैसे इंश्योर करूंगा, चोरी हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो. मुझे इंटरेस्ट किससे है? द रैशनल बिहाइंड दिस इज दैट मुनिल, अगर तुझे 20 किलो गोल्ड खरीदना है, ओके, तेरा व्हाई आर यू बाइंग इट? फॉर फिजिकल यूज, देन ऑफ कोर्स गो टू अ शोरूम एंड बाय. बट फॉर इन्वेस्टमेंट और प्राइस अप्रिसिएशन, ऑफ कोर्स वन शुड बाय अ फ्यूचर और ईटीएफ भी होते हैं, गोल्ड के ईटीएफ भी होते हैं, गोल्ड के बॉन्ड्स भी होते हैं, सब कुछ होता है. बट इन जनरल अगर मुझे बड़ा एक्सपोजर ही लेना है, ओके, जस्ट फॉर द प्राइस अप्रिसिएशन, ठीक है, मेरा इंटेंट उसको फिजिकली यूज करना नहीं है, तो मैं कर सकता हूँ ना, डेरिवेटिव से यूज कर सकता हूँ. क्यों मैं इतना मेहनत करूँ, टेंशन भरूं मेरे दिमाग में, गोइंग एंड बाइंग गोल्ड एंड देन पेइंग अ जीएसटी एंड देन गेटिंग इट हियर एंड देन प्रिजर्विंग इट हियर एंड टेकिंग द लोड कि इसका चोरी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, व्हाट नॉट. राइट, दैट इज व्हाई द कंफर्ट दैट वन गेट्स, ओके, यूजिंग डेरिवेटिव्स इज समथिंग एल्स. तो इसीलिए भी यूज होता है. एंड देन देर आर मेनी अदर रीजंस. तो आप बोलोगे यार स्टॉक्स में और बॉन्ड्स में तो ऐसा कुछ नहीं है, इजीली हो सकता है ना वहां पे. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. स्टॉक्स और बॉन्ड्स में भी लोग डेरिवेटिव्स क्यों करते हैं, उसका रीजन है. ओके, एंड द रीजंस आर दीज हाईलाइटेड हियर. ठीक है, मैंने यहाँ पे रीजंस डाले हैं, आपको स्लोली स्लोली समझ में आ जाएगा. ठीक है, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा रीजंस, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट दीज आर द प्राइमरी रीजंस, ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डूइंग डेरिवेटिव्स. तो आपको तभी मैं आपको वो वाई का आंसर दे दूंगा कि क्यों डेरिवेटिव्स यूज करना है, तो बता दूंगा. अभी के लिए एक बेसिक एग्जांपल देके आपके दिमाग में मैंने एक चीज पार्क कर दी है. सो बी देयर एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो there are broadly, okay, broadly there are 4 types of main instruments, okay, main financial instruments within derivatives. Okay, 4 types. So the first security type is called as forwards.
अब फॉरवर्ड क्या है, आप बोलोगे फॉरवर्ड क्या है? फॉरवर्ड एज द नेम गोज, ओके, इट इज समथिंग टू बी डन फॉर द फ्यूचर, इट इज समथिंग टू बी डेल्ट विथ इन द फ्यूचर। देखते हैं, पढ़ते हैं, लेट अस रीड दिस लाइन एंड देन आई विल शो यू एन एग्जांपल व्हिच आई हैव टेकन, ठीक है? तो दैट इज व्हाई लॉट ऑफ ग्राफिक्स हैज बीन यूज्ड हियर, सो दैट आपको वो ईज मिले। फॉरवर्ड्स, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बायर, era, a contract between a buyer and a seller to exchange the underlying at a predetermined future price and date regardless of the spot price at the end of the tenor। अब आपको वापस ऐसा लगेगा अरे ये सब क्या है यार, एग्जाम्पल, ओके, एक के बाद एक मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, चलो वो नीचे का तो देखेंगे बाद में। अब समझ लो, लेट्स अज्यूम दैट यू आर अ फार्मर, ओके, यू आर अ फार्मर हु इज प्रोड्यूसिंग व्हीट, ठीक है? अब आपने, आपको भी ये सब हार्वेस्ट करना बाकी है, ठीक है? आप, आपका वीट उग रहा है, ओके, इट इज ग्रोइंग, बट इसको और ग्रो होना बाकी है, और उसके बाद हार्वेस्टिंग होगा, और उसके बाद यू एज अ फार्मर विल गो to the wholesalers and distributors and sell them your wheat so that they can then make it reach to the end user, correct, simple, okay? अब लेट से फार्मर क्या सोचेगा, मैं आपको बताता हूँ। फार्मर ने जिस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट किया है, सबसे पहले जमीन, वो पूरी जमीन फार्मर की है, तो सबसे पहला वो है। दूसरा, यहाँ पे सीड डालना है, मेहनत करना है दिन रात, फर्टिलाइजर डालेंगे सो दैट आसपास की कोई चीजें ना आए, ओवरऑल पेस्टिसाइड से चेक कर लेंगे कि कोई कीड़े वीड़े नहीं लगते, दे विल इंश्योर द क्वालिटी, प्रॉपर हार्वेस्टिंग, क्लीनिंग द यू नो द फाइनल व्हीट दैट इज कमिंग आउट एंड ग्रोइंग, ओके? तो काफी चीजों का कॉस्ट लगता है। सो लेट्स अज्यूम दैट एक फार्मर को 1 kg व्हीट बनाने के लिए लेट से लगता है 5 रुपीज, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? अब फार्मर क्या सोचेगा, मैं आपको वो बताता हूँ। फार्मर ऐसा सोचेगा कि आज की तारीख में, ओके, आज की तारीख में मार्केट में भाव चल रहा है व्हीट का, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपया, ओके? आज की तारीख में मार्केट में व्हीट का भाव 10 रुपया चल रहा है, ओके, सेल्स प्राइस 10 रुपया चल रहा है, वो आज की तारीख में। मेरा व्हीट कब होगा रेडी? मेरा व्हीट रेडी होगा 3 महीने बाद, ओके, फार्मर का। आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ फार्मर्स पर्सपेक्टिव, दैट द कॉस्ट फॉर द फार्मर टू मेक 1 kg ऑफ व्हीट इज 5 रुपीज। मार्केट में अभी 10 रुपीज का भाव चल रहा है, ओके? 3 मंथ्स आफ्टर, ओके, 3 मंथ्स आफ्टर, ध्यान से सुनना, जो व्हीट फार्मर ने उगाया है उसका हार्वेस्ट होते होते उसको रेडी, उसका कंप्लीट फाइनल प्रोडक्ट बनते बनते 3 महीना लगने वाला है, ओके? सो 3 मंथ्स इज द लीड टाइम, ओके? अब आज मार्केट में क्या भाव चल रहा है? आज मार्केट में चल रहा है 10 रुपए। फार्मर को, फार्मर क्या सोचेगा? फार्मर सोचेगा कि व्हाट इफ, ओके, व्हाट इफ, ध्यान से सुनना, व्हाट इफ 3 महीने बाद मार्केट में, जैसे मैं एक फार्मर हूं, जैसे 3 महीने बाद मार्केट में मेरा वीट बन जाएगा, वैसे कितने सारे फार्मर्स हो गए, बिकॉज सीजन के हिसाब से बनता है, तो वैसे कितने सारे फार्मर्स हो गए जिनका वीट 3 महीने में रेडी हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 3 महीने बाद वीट का बहुत सप्लाई हो जाएगा मार्केट में, बिकॉज अगर बहुत सप्लाई हो जाएगा मार्केट में वीट का, तो भाव कम हो जाएगा, सिंपल है। अगर डिमांड यहाँ पे है, आज सप्लाई यहाँ पे है, ओके, अब अगर सप्लाई ऊपर चला जाए तो डिमांड अपने आप नीचे जाती है, करेक्ट? तो जब सप्लाई बढ़ जाता है तब प्राइस कम हो जाता है, बिकॉज नाउ पीपल हैव वैरायटी, करेक्ट? कोविड के टाइम पे क्यों मास्क और वो सब का प्राइस इतना बढ़ गया था? बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी एंड एट द सेम टाइम, सो लेस सप्लाई एंड मोर डिमांड। एग्जैक्टली उल्टा सिनारियो यहाँ पे हो गया, तो 3 महीने के बाद बहुत सप्लाई है, पीपल हैव ऑप्शंस, ऐसा कुछ नहीं है, द होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आल्सो हैव ऑप्शंस टू गो एंड मीट फार्मर्स लाइक मी एंड यू। तो ऐसे टाइम पे फार्मर ऐसे सोचेगा कि भाई सुनो, एक काम करते हैं, मुझे अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, आज मुझे 10 रुपए मिल रहा है मार्केट में, ठीक है? लेट मी सेल अ फॉरवर्ड, लेट मी, ध्यान से सुनना,
ओके, ध्यान से सुनना। लेट मी सेल अ फॉरवर्ड, ओके, let me sell a 3 month forward contract. I will write it. Okay. Let me sell a 3 month forward contract to Mr. A, who is the, let's say, a distributor. ठीक है, at 9 rupees. फार्मर क्या बोल रहा है, मेरे पास आज के आज वीट देने को है नहीं है, बराबर है। मेरे पास वीट देने को कब होगा, 3 महीने बाद। 3 महीने बाद ये 10 रुपए का क्या हो जाएगा भाव, मुझे पता है नहीं पता है। तो लेट से 3 महीने बाद ये 10 का भाव अगर 4 हो गया, तो बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ सप्लाई, तो मैं तो लॉस कर बैठूंगा ना 1 रुपए का, क्योंकि मेरा कॉस्ट 5 था। अगर मुझे 4 रुपए मिला तो मैं लॉस में चला जाऊंगा। ओके, तो मुझे नहीं पता है कि 3 महीने बाद क्या होगा। और भाई मैं फार्मर हूं, मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूं। मुझे एनालाइज करने में नहीं बैठना है और मुझे कोई जुआ नहीं खेलना है। सिंपल बात है, मैंने कोई चीज 5 रुपए में बनाई है, उसके ऊपर जो भी भाव में मेरा माल जाता है मैं प्रॉफिट तो बना रहा हूं एटलीस्ट। करेक्ट। तो एक स्मार्ट फार्मर जनरली ये ट्राई करेगा करने को, that it will sell a 3 month forward contract to Mr. A, let's say a distributor, to a distributor at 9 rupees. ठीक है, भले आज 10 चल रहा है, तुम 9 पे लॉक कर दो। Still farmer will make a 4 rupee profit on every kg of wheat sold. Correct. सो दिस इज द नाउ, धीरे धीरे ना, मेरे जैसे जैसे मैं आपको ज्यादा एग्जांपल्स देते जाऊंगा, धीरे धीरे आपको अपने आप समझ जाएगा व्हाई आर डेरिवेटिव्स इवन यूज्ड। ठीक है, आपको ये समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी समझाया, ओके, इन अ वेरी इजी लैंग्वेज, दिस कॉन्सेप्ट माय फ्रेंड्स इज कॉल्ड एज हेजिंग। हेजिंग, बहुत हेज 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 सुनते हो ना हर जगह पे, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज हेजिंग। ठीक है। सो but when I say that let me sell a 3 month forward contract to Mr. A at 9 rupees, इसका मतलब ये है that the farmer cannot sell wheat today. ध्यान से सुनना, मैं जो एक एक चीजें बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक धीरे धीरे आपको आपको है ना, स्टार्टिंग के थोड़े टाइम में मेरी लैंग्वेज बैठ जाएगी ना डेरिवेटिव्स की, तो आप पकड़ लोगे सब कुछ, इसलिए बोल रहा हूँ। फार्मर के पास आज वीट बेचने को नहीं है, बट उसको अपना भाव लॉक करना है, तो एटलीस्ट वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेच दे। नाउ यू अंडरस्टूड हाउ द नेम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट केम। द नेम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट केम बिकॉज आई एज अ फार्मर, ध्यान से सुनना, आई एज अ फार्मर am getting into a contract with Mr. A. Okay, I am getting into a forward contract with Mr. A. Okay, for 9 rupees. Why do I call it forward contract? Because the final exchange, okay, ध्यान से सुनना, the final exchange, the final transaction of len den is going to happen after 3 months. Today I am just locking the price. So when I say that the farmer has sold a 3 month forward contract to Mr. A at 9 rupees, it means that after 3 months, farmer will sell wheat at 9 rupees to Mr. A. Okay. So essentially here there will be, so here there will be, सबसे पहला तो point 1, okay. First, farmer will deliver wheat to Mr. A, will pay the money at 9 rupees per kg, and that is how the transaction will be over. So because the transaction is in a forward date, आगे का टाइम का है, we call it a forward contract. करेक्ट। सो इसमें दिस 3 months, ओके, इसमें थोड़ा डेरिवेटिव्स का अभी से आपको टर्म समझा रहा हूं, बिकॉज एक हम ऑलरेडी एक एग्जाम्पल के अंदर है, इसलिए तो आगे जाके सेम और सेम चीज आपको वापस सिखानी नहीं पड़ेगी, बिकॉज आगे भी ये यूज होगा। सो हियर इन दिस एग्जाम्पल 3 months इज नथिंग बट टेन्योर, ओके, द टेन्योर ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, द अंडरलाइंग, और अदर लेट मी उल्टा, ठीक है, हाँ, द वीट इज द अंडरलाइंग एसेट हियर, बराबर।
ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कहां से डिराइव हो रहा है? वीट से। सो वीट इज द अंडरलाइंग एसेट। ओके, व्हाट इज 9 रुपीज गाइस? 9 रुपीज इज द स्ट्राइक प्राइस। ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सरसाइज प्राइस। Okay, 9 rupees is called as strike price, also called as exercise price. This is the price that is booked. Okay, this is the booked price that in any circumstance, अभी मतलब कहने का मतलब है 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अगर वीट का भाव, ध्यान से सुनना, 3 महीने के बाद अगर वीट का भाव 5 रुपए भी हो गया, तब भी फार्मर उसको 9 पे ही बेचेगा और मिस्टर ए को वो 9 पे खरीदना ही पड़ेगा, until and unless there is a situation of default, which is also managed by the regulators or the central counterparties. अभी के लिए वो छोड़ो जो मैं बोल रहा हूँ वो, but there are clearing houses that ensure, जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में लेट से मुझे रिलायंस बाय करना है, तो मैं मेरा पैसा पे करता हूं, उसके सामने मेरे डीपी में रिलायंस के स्टॉक्स आते हैं, राइट? तो ऐसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। हु एंश्योर्स दिस स्मूथ ट्रांजैक्शन? NSC, BSC, SEBI, NSDL, CDSL, all these people, collectively are helping me out, my broker, सब, right? All the parties, बस उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। सो अगर 3 महीने के बाद 5 रुपए पे भी चलता रहेगा भाव, द डिस्ट्रीब्यूटर विल टेक अ लॉस एंड बाय दिस पर्टिकुलर वीट एट 9 रुपीज, वो फिक्स है। एंड लेट से अगर प्राइस 3 महीने के बाद 25 है, 25 हो जाता है, स्टिल फार्मर को दिल पे हाथ रख के, तो दिल पे हाथ रख के एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना था तो मैंने रिस्क नहीं लिया, अब मैं 9 रुपए पे ही इस चीज को सेल करूंगा। नाउ आई वोंट बी अ कावर्ड। समझ गए? दिस इज हाउ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्क। सो 3 months हियर इन दिस एग्जांपल इज अ टेनोर, wheat is the underlying asset, 9 rupees is a strike price or the exercise price. Okay, farmer, ध्यान से सुनना, फार्मर इज लॉन्ग फॉरवर्ड। ओके, इन डेरिवेटिव्स का लैंग्वेज ना, इन डेरिवेटिव्स, ध्यान से सुनो, इन डेरिवेटिव्स लॉन्ग इज यूज्ड फॉर बाय एंड शॉर्ट इज यूज्ड फॉर सेल। ठीक है, तो लॉन्ग फॉरवर्ड विच इज अ बायर एंड मिस्टर ए हियर इज शॉर्ट फॉरवर्ड विच मीन्स अ सेलर। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, ओके, बट ये लैंग्वेज घुस जाएगी। सो इन डेरिवेटिव्स बाय को लॉन्ग बोला जाता है, ओके, और सेल को शॉर्ट बोला जाता है। समझ गए ये पूरा ट्रांजैक्शन की क्या होगा, कैसे होगा? क्लियर एवरीवन? करेक्ट। तो उस हिसाब से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट चलता है। नाउ नाउ इफ यू रीड दिस लाइन, आपको लगेगा हलवा। देखो, अब रीड करके देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर टू एक्सचेंज द अंडरलाइन, ओके, टू एक्सचेंज द wheat at a predetermined future price, which is what the strike price, the exercise price, 9 rupees, and date is what, after 3 months, regardless of the spot price at the end of the tenor, regardless whether the spot price, the normal price of wheat will be 25 or 5 at the end of the tenor। अब पूरा लाइन समझ गया ना, पूरा सिंक में जाएगा। दैट इज हाउ एग्जांपल्स आर वेरी यूजफुल इन डेरिवेटिव्स, दिस इज हाउ वी विल गो। बस देखो, समझ लो, मैंने जो आपको फार्मर का एग्जांपल दिया वही यहाँ पे चिपकाया हुआ है। जस्ट बिकॉज मैंने वो वाला समझाया है, मैं यहाँ पे घुसूंगा नहीं, अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस सेम स्ट्रक्चर बैठ के शांति से देखोगे तो सेम है, वरना ये वाला तो ऑलवेज देयर। ठीक है, तो बस ये है अबाउट फॉरवर्ड्स। तो डेरिवेटिव समझ गए, फॉरवर्ड समझ गए, नाउ विल कम टू फ्यूचर। अब फॉरवर्ड अगर समझ गए ना, तो एक चीज समझ लो, फ्यूचर सेम ही है, फ्यूचर्स और फॉरवर्ड में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ दो फर्क है, दो, ब्रॉडली, और भी है थोड़े, बट ब्रॉड फर्क दो है। फ्यूचर्स ना एक्सचेंज रेगुलेटेड है, इसका मतलब ये है, एक्सचेंज में ट्रेड होता है फ्यूचर्स, कैसे हम स्टॉक्स बाय करते हैं, सेल करते हैं वाया एन एक्सचेंज, NSE और BSC, तो फ्यूचर्स भी उस तरीके से एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। फ्यूचर्स डू नॉट ट्रेड ओवर द काउंटर, एंड व्हेन आई से ओवर द काउंटर, इसका मतलब क्या होता है? सो जनरली, लेट मी अगेन गो बैक टू फॉरवर्ड। ओके, ये फॉरवर्ड में है ना, फॉरवर्ड में कौन कौन लोग घुसते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फॉरवर्ड में जनरली द पार्टिसिपेंट्स हु एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ना आर मोर ओवर एक्सोटिक डीलर्स, प्राइवेट डीलर्स, मतलब
दे आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड इन नेचर। आज जैसे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो वीट का था, कल उठ के बाजरी का आएगा, उसके बाद रागी का आएगा, उसके बाद जवार का आएगा, उसके बाद लाइक कोरिएंडर का आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। फॉर एनी एंड एवरीथिंग देयर कैन बी अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे हो? सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी 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 कस्टमाइज्ड इन नेचर। ओके, ये आपको एक्सचेंज पे ट्रेड होते नहीं दिखेगा। मतलब आज रिलायंस का एक स्टॉक है फॉर एग्जांपल, तो वो एक ही स्टॉक है, रिलायंस के स्टॉक में चार वेरिएशन नहीं है, बट कमोडिटीज में अगर घुसो तो वेरिएशंस है। आप फूड फूड ग्रेन्स में घुसो तो उसमें वेरिएशंस है, राइट? तो जनरली forward happens in a customized setting where the buyer and a seller, in that case, in the example that we learned, in that case the farmer and Mr. A आर ट्रांजैक्टिंग, दोनों, ये है फार्मर, ये है मिस्टर ए, इनके बीच में जो है ना, इनके बीच में एक डीलर होता है। ओके, डीलर बोलता है अच्छा ओके फार्मर जी, आपको कितने 5 किलो वीट बेचने हैं 3 महीने बाद, चलो ठीक है, क्या प्राइस है आपको? आपको 10 का प्राइस चाहिए। ओ भाई डिस्ट्रीब्यूटर, तुझे बाय करना है, तू कितने का प्राइस कोट कर रहा है? भाई मैं 9 रुपए में बाय करूंगा। इसको पूछ रहे हैं 9 चलेगा? हाँ 9 चलेगा, हाँ डन। सो डीलर बीच में बैठेगा और डीलर ये दोनों के बीच में डील करेगा। ओके, दैट इज हाउ फॉरवर्ड्स आर डेल्ट विद। दे आर कस्टमाइज्ड इन नेचर, दे आर नॉट एक्सचेंज ट्रेडेड। एक्सचेंज में उसका कोई ट्रेड नहीं होता है, यू कैन नॉट जीरोधा खोल के आप उसका भाव नहीं देख सकते। ओके, फॉरवर्ड्स आर दैट। एग्जैक्टली समझ गए क्या था फॉरवर्ड्स? अभी फ्यूचर्स इज जस्ट लाइक फॉरवर्ड्स, इसमें सिर्फ दो ही फर्क है। एक फर्क तो वो है दैट वो स्टैंडर्डाइज्ड है बहुत। ओके, स्टैंडर्डाइज्ड इन द सेंस कि ये मैंने फार्मर का जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो मैंने कैसे बोला 5 किलो का कॉन्ट्रैक्ट था फॉर एग्जांपल, अभी अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया 5 किलो का। सो दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी 5 kgs, 15 kgs, 1000 kgs, 5000 kgs, 1 lakh kgs, एनीथिंग। ओके, बिकॉज इट इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, इट इज कस्टमाइज्ड, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड। जैसे कि हम मार्केट में देखते हैं, आप थोड़ा जीरोधा खोलना, थोड़ा स्टडी करना, गूगल करना, अब हम मार्केट में देखते हैं निफ्टी का लॉट साइज इज 25, बैंक निफ्टी का लॉट साइज इज 15, राइट? कोई भी एक स्टॉक है, लेट से हम रिलायंस का स्टॉक ले लेते हैं, तो उसका लॉट साइज इज 250। ओके, वन लॉट हैज 250 क्वांटिटी ऑफ रिलायंस, राइट? तो उस हिसाब से लेट से इफ आई वांट टू बाय 1000 रिलायंस इन अ फ्यूचर्स का मोड, आई हैव टू बाय 4 लॉट्स। तो उस हिसाब से लाइक मेरा जो आपको कहने का मतलब है ये वो है दैट अगर मुनिल को मन हुआ दैट नहीं, मुझे 170 रिलायंस चाहिए, तो कुछ नहीं होगा, नो वन विल लिसन टू मी। आई कैन नॉट गेट 170 रिलायंस, आइदर आई कैन गेट जीरो और आई कैन गेट 250 रिलायंस। सो 250 is the lot size, तो any multiple of that lot size is only available। 750 चाहिए मिल जाएगा, 500 चाहिए मिल जाएगा, 850 चाहिए नहीं मिल पाएगा, 750 तक मिल पाएगा, ऊपर का 100 का विजिबिलिटी नहीं है। समझ रहे हो? तो फ्यूचर्स बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड है। ओके, हर चीज को स्टैंडर्डाइज की गई है। मैं अचानक से आके बोलूं कि मुझे 10 निफ्टी खरीदना है, पॉसिबल नहीं है। मैं आके बोलूं मुझे 40 निफ्टी खरीदना है, पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब यह है दैट फ्यूचर्स आर वेरी स्टैंडर्डाइज्ड इन नेचर, दे हैव लॉट साइजेस एंड वन हैज टू डील इन मल्टीपल्स ऑफ दैट लॉट साइजेस ओनली। ओके, बट फॉरवर्ड्स में ऐसा नहीं है। फॉरवर्ड में लेट्स से अगर मुझे एंटर करना है निफ्टी, मैं बोलता हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल 109 निफ्टी चाहिए, तो 109 निफ्टी में भी काम हो सकता है फॉरवर्ड्स में। इट इज मोर कस्टमाइज्ड एंड एक्सोटिक इन नेचर, फ्यूचर्स आर मोर regulated. Okay, so pretty similar to forwards except that they are exchange traded and hence regulated। जैसे मैंने बोला exchange में ट्रेड होते हैं, standardized होते हैं, and that is why they are even regulated। Okay, बहुत regulated होते हैं। and then there is another difference। Okay, तो एक पार्ट समझ गए कि भाई standardized है, regulated है, अंडर प्रॉपर रेगुलेटर्स है, ठीक है? दूसरा फर्क इसमें क्या है मैं बताता हूँ। दूसरा फर्क है डेली मार्क टू मार्केट। ओके, अब आप पूछोगे मार्क टू मार्केट क्या है? मार्क टू मार्केट का मतलब है हार जीत, सिंपल भाषा में बोलूं तो हार जीत। ओके, इसका मतलब यह है कि लेट से मैंने आपसे लेट से फार्मर का एग्जांपल लेते हैं। ओके, कि फार्मर से एक कॉन्ट्रैक्ट में घुस गए हैं मिस्टर ए और फार्मर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, और वो 9 रुपीज में फिक्स हुआ है। ओके, अब लेट से और फार्मर का कॉस्ट क्या है? 5 रुपीज। अब लेट से नेक्स्ट डे
मार्केट में वीट का प्राइस हो जाता है 15 रुपीज। फिक्स क्या हुआ था? 9 रुपीज। हो कितना गया है? 15 रुपीज। तो 6 रुपीज बढ़ गया है वीट का। ध्यान से सुनना, 6 रुपीज वीट का बढ़ गया है। और कितने का लॉट था? 5 केजीज का था। तो 6 × 5 30, 30 रुपीज का फायदा हो रहा है। किसको हो रहा है? किसको हो रहा है? मिस्टर ए को हो रहा है। मिस्टर ए इज द बायर, फार्मर इज द सेलर। ओके। अगर भाव बढ़ते जा रहा है, ओके, लेट से मैं ये बॉटल बाय कर दूं 100 रुपए में, 5 दिन बाद ये बॉटल 105 की हो जाए, तो मैंने तो बाय कर लिया था ना 100 पे, तो मेरा फायदा है। करेक्ट। सो उस तरीके से मिस्टर ए और फार्मर के बीच में 9 रुपीज का डील हुआ है। अब अगर वो प्राइस 15 हो गया तो 6 रुपए का फायदा हो गया मिस्टर ए का। तो फ्यूचर्स क्या बोलता है? ओके। और रादर लेट मी गो टू फॉरवर्ड्स फर्स्ट। फॉरवर्ड क्या बोलता है? ठीक है भाई, मुझे ये सब है ना जिंग बैंग नहीं पसंद है, आई डोंट वांट टू डू दैट। ओके। आज कितना भाव, कल कितना भाव, परसों कितना भाव, नहीं। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है ना। आज 1 तारीख है ना। 90th डे पे आ जाना मिलने मेरे को। ओके। 90th डे पे भाव देखेंगे क्या है। 16 है, 100 है, 5 है, 0 है, जो भी है उस हिसाब से प्लस माइनस हो जाएगा। सो लेट्स से आफ्टर 3 months, इफ द प्राइस इज एट 25, ओके, इफ इफ आफ्टर 3 months द प्राइस इज एट 25, तो 16 रुपए का फायदा मिस्टर ए का हो रहा है। तो वो जो 16 रुपए का फायदा है वो मिस्टर ए को अपने आप से ही मिल जाएगा। आप पूछोगे कैसे मिलेगा? अरे भाई मैंने आपको बताया तो सही। 3 महीने के बाद फार्मर 9 रुपए के भाव पे इसको बेच देगा माल, मिस्टर ए को। मिस्टर ए वही माल लेके 15, 16, 20, 25 में बेच सकता है। करेक्ट। तो बस इस तरीके से बायर का फायदा हो जाएगा। करेक्ट। बट this is the case in forwards where you wait till maturity. Okay, where you wait till maturity and exchange the assets and then try to do stuff. In futures it is a bit different. Futures क्या बोलता है? भाई रोज का रोज करो ना यार, रोज का रोज करो। मैं उसका रीजन भी आपको बताता हूँ क्यों। ओके। फ्यूचर्स क्या बोलता है कि लेट से वो फॉरवर्ड के एग्जांपल में अगर 3 महीने के बाद वीट का भाव 250 रुपये हो जाता, तो 250 रुपीज हो जाता, तो शायद से फार्मर की नीयत फिसल सकती है ना। फार्मर बोलेगा कि अरे भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं ब्रीच कर दूं और मार्केट में जाके बेचूं तो मैं पैसा कमा सकता हूँ। बेचेगा ना? बेचेगा कि नहीं बेचेगा? करेगा ना। और अगर नहीं भी करेगा तो एक रिस्क बढ़ जाएगा ना, हमारे एंड पे तो बढ़ जाएगा, वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर के एंड पे तो बढ़ जाएगा कि यार आई एम नॉट रियली श्योर कि अब ये पैसा देगा कि नहीं देगा। करेक्ट। पैसा इन द सेंस पैसा नहीं, बट वीट देगा कि नहीं देगा। क्या पता ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके किसी और को महंगे में बेच दे। ये जो टेंशन है ना फॉरवर्ड्स में, ये सब टेंशन पालना पड़ता है 3-3 महीने के लिए। फ्यूचर्स क्या बोलता है मैं बताता हूँ। फ्यूचर्स बोलता है भाई रोज का रोज हिसाब करो। उसका मतलब कैसा है बताता हूँ। ठीक है। आज फार्मर ने और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में एक एक 3 महीने का, लेट से, फॉरवर्ड नहीं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट डे और कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया। नेक्स्ट डे वीट का भाव जो अभी मार्केट में 10 रुपए चल रहा है, नेक्स्ट डे वीट का भाव 14 हो जाता है। स्ट्राइक प्राइस 9 की थी, अब नेक्स्ट डे 14 का हो जाता है वीट। विच मीन्स 5 रुपीज का फायदा ऑन अ 5 kg कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। 5 रुपीज का फायदा ऑन अ 5 kg कॉन्ट्रैक्ट, तो 25 रुपए का फायदा हो जाएगा। किसको फायदा होगा? भाव बढ़ेगा तो किसको फायदा होगा? 9 का प्राइस बुक हुआ है। ठीक है। 9 इज द स्ट्राइक प्राइस ईयर। ठीक है। अगर 9 का 14 होता है, विच मीन्स 5 रुपए का फायदा होता है, और 5 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 5 5 25 रुपीज का फायदा किसका होगा? फार्मर का होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर का होगा? भाव बढ़ रहा है तो नुकसान फार्मर का हो रहा है ना, कि उसने तो अपना भाव फिक्स कर दिया है 9 रुपए का, और अब भाव बढ़ रहा है, तो फायदा किसका है? फायदा जो लॉन्ग है वो उसका है, डिस्ट्रीब्यूटर का है। तो 5 × 5 25 रुपीज। फ्यूचर्स ये बोलता है कि भाई अगर कल 5 रुपए से भाव बढ़ा है ना, तो कल के कल फार्मर को, डिस्ट्रीब्यूटर को 25 रुपए दे देने के हैं। ओके। एंड द स्ट्राइक प्राइस विल देन मूव टू, फॉर एग्जाम्पल, एंड देन द स्ट्राइक प्राइस विल देन मूव टू, द नोशनल स्ट्राइक प्राइस, ओके, विल मूव टू 14। लेट्स से नेक्स्ट डे
भाव 16 हो जाता है। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, ठीक है, ये दो दो 2 रुपए और बढ़ गए तो 2 × 5, 10 रुपीज जो है मोनिल, तू फार्मर है, तू डिस्ट्रीब्यूटर को दे दे, मैं दे दूंगा। नेक्स्ट डे भाव 11 रुपए हो गया, तो 11 मतलब 5 रुपए का फायदा किसको हुआ, फार्मर को हुआ, क्योंकि भाव कम हो गया है, तो फार्मर इज इन अ बेटर शेप। तो 5 5 25, डिस्ट्रीब्यूटर फार्मर को 5 रुपए दे दे। इस हिसाब से फ्यूचर्स बोलता है रोज हिसाब करो प्लस माइनस का, रोज करो रोज। क्यों बोलता है, वो इसलिए बोलता है कि अगर ऐसे सिस्टमैटिकली गए ना, तो दोनों की नियत क्लीन रहेगी। 3 महीने बाद अगर भाव 200 250 पे दिखाना फार्मर को, उसकी नियत फिसल सकती है, हाई चांस। दैट इज वाई डूइंग डेली एमटीएम, डूइंग डेली मार्क टू मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टॉक्स, इन बॉन्ड्स एंड अक्रॉस अदर एसेट क्लासेस। डेली एमटीएम हैपेंस इन फ्यूचर, इन रियल लाइफ ऑल्सो इट डज हैपन। ठीक है, कभी जीरोधा खोल के निफ्टी के 2 लॉट खरीद लो और रखो, और देखो एमटीएम किस तरीके से चलता है, आपको समझ जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में ये डिफरेंस है, वरना तो सब सेम है। जैसे कि मैंने बताया, फॉरवर्ड में 2 लोगों के बीच में एक डीलर बैठता है, फ्यूचर्स में 2 लोगों के बीच में ये एक्सचेंज बैठता है, एनीथिंग एनएससी और बीएससी। ठीक है, तो फ्यूचर्स पता चल गया। अब है ऑप्शंस और स्वॉप्स। एंड बाय द वे आई टेल यू समथिंग, आई एम कवरिंग, अभी ऐसा आपको लगेगा कि अरे सर वीडियो इतने टाइम से चालू है, अभी तक हमने खाली 3 पॉइंट्स कवर किए। 3 पॉइंट्स नहीं है, आई टेल यू, ये जो स्टार्टिंग के ये 5 पॉइंट्स है ना, ठीक है, ये 5 पॉइंट ही डेरिवेटिव्स है, ये 5 पॉइंट ही डेरिवेटिव्स है, आई एम टेलिंग यू। ये 5 पॉइंट आ गया ना, सो आपके टेक्स्ट बुक में कैसा है, पहले ये बोल देते हैं ऐसा, फटाफट फटाफट फटाफट। उसके बाद स्टूडेंट ऑलरेडी घबरा जाता है, अरे भाई मुझे कैसे समझेगा फॉरवर्ड, मुझे कैसे समझेगा फ्यूचर, मुझे कैसे समझेगा ये, मुझे कैसे समझेगा वो। और फिर धीरे धीरे बिल्ड करते हैं, ऐसे नहीं होता है ना, स्टूडेंट तो तब तक डर जाता है। दैट इज वाई वी विल स्पेंड द मेजोरिटी टाइम हियर, बिकॉज वंस दिस इज क्लियर गाइज, ये रीडिंग का बाकी का पार्ट, नेक्स्ट रीडिंग्स का कुछ भी पार्ट, सब इजी है, सब हलवा है, आपको सब आ जाएगा। सो जस्ट बेयर विथ मी इन दिस पर्टिकुलर रीडिंग, ये रीडिंग को थोड़ा थोड़ा ऐसे जो स्लोली लेके जा रहा हूं, स्लोली ही जाने दो। आगे का रीडिंग एकदम ही ऑप्टिमल जाएगा आपको। आपको सो आइडियली इफ यू आर द रीडर ऑफ श्वेजर बुक फॉर द फर्स्ट टाइम ना, आपको फ्यूचर फॉरवर्ड्स ऑप्शन स्वॉप सब समझते समझते रीडिंग 71 72 आ जाएगा। बट हम 68 में ही वो कवर कर लेंगे, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, सो राइट नाउ आई एम ब्रेकिंग दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट ऑप्शंस एंड स्वैप्स। ठीक है, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड नाउ वी आर ऑन, ओके, विद डेरिवेटिव्स वी आर ऑन, आई वांट द एनर्जीज इन। ठीक है, कैसे इजी था, फॉरवर्ड का एग्जांपल इजी था, फ्यूचर्स का भी दे दिया, और ऐसे बहुत है, देखो ये भी है, ये भी है, अलग अलग है, मैं सब बताऊंगा आपको, सब देखो ऑप्शंस में भी है, स्वैप में भी है, सब बताऊंगा। ठीक है, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।